Hello my dear friends of standard 9th, welcome you all in today's online class. My dear friends, as you all know it very well that we are learning the science properly and we are involved in learning 3 sections, that is physics, chemistry and biology. And dear friends, there is no any video related to the chemistry because there was no any term so far which you have got the video from chemistry section. So today as per schedule I am going to start one chapter 1, that will be part of periodic test 1, matter in our surrounding. So the chapter name is the matter in our surrounding. This is the particular chapter on which we will learn a lot of things, a lot of contents regarding the chapter. And this chapter, this is the very important and basic chapter of chemistry. And if you understand this chapter properly, then we can understand the chemistry and the phenomena of chemistry, principles of chemistry very easily. So we can understand. So dear friends, don't make any kinds of the hesitation in learning this chapter. So as you, the name of the chapter is from chemistry section, the matter. So let's start with the word, that is what is the matter. Generally, how can you define the matter? And in the previous classes, your later classes, already you have learned about the matter, because this is not new word for you. Whatever you look around in your surrounding, at a glance, whatever you see nearby your surrounding, just like house where you live, okay, and the surrounding, it means including the trees, buildings, monuments, everything, whatever you see, just is referred as the matter. Okay, so but this is the not a proper exact definitions. We have to provide a proper definition. On the basis of that, in the scientific ways, how can you tell the matter, how can you estimate the matter in scientific ways, in the science glossary, in science vocabulary, कैसे हम उसको elaborate करें. तो मैटर क्या है? एनीथिंग, कुछ भी हो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कंप्यूटर आप चलाते हो, ठीक है, ब्रीथ यू, जो सांस लेते हैं हम लोग, वो भी ब्रीदिंग, दैट इज द मैटर. ओके, so water already is a part of matter. So everything we are surrounded, we can say that we are surrounded with the matter. So according to the scientific way, anything that has mass, important, that has mass, anything मतलब कुछ भी that has mass and occupies मतलब absorb करती है, उसमें टेंडेंसी हो ऑक्यूपाई करने की, स्पेस को ऑब्जॉर्व करने की. ऑक्यूपाइज स्पेस दैट हैज वॉल्यूम. ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब है उसका वॉल्यूम भी है, इट हैज वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी है, उसका आयतन भी है, फिक्स मतलब एक उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है, इज कॉल्ड मैटर. इट मीन्स जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो डेफिनेटली उसमें उसका मेजरिंग यूनिट जरूर होगी, डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रीथ, हाइट होगी, समथिंग. So that will occupies the space. Okay, so this is the proper definition, and I hope you have got this one. And in the modern ways, in your own words, you can define the matter, just you feel comfortably. But in the scientific ways, in the science ways, you have to define like that. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि we are surrounded by the everythings, just like there are some emotions, sentiments, some other types of the feelings, just like becomes our expression in our mind coming inside our body, yeah, in our brain. So can we imagine that these are the matter? These can be part of the matter, just like emotions, energy, heat, temperature, energy. So all these comes under the part of the matter. So this is the matter of thinking. So you must think over it. You must concern over it. There is a question mark. Is worry a kind of matter? क्या चिंता करना, anxiety, that is the part of matter? तो आंसर तो यहाँ पे आएगा. फिजिकल वे में बात करें तो जितने भी सेंटिमेंटल इमोशंस होते हैं, जितने भी इमोशंस होते हैं जो हमारे बॉडी से अराइज करते हैं, that cannot be measured physically by using the balance. Okay. You can't measure the sentiments, emotions, because there is no any weighing machines which can measure it. That's why
worry and other sentiments, energy, kinds of the energy, heat, temperature, radiations, these cannot be a part of the matter. So physical nature of the matter. So we have to move towards the physical nature of the matter, and we will learn about the physical. Physical means the externally, whatever we learn externally. Okay, whatever we see the changes in the matter, colors, what is the matter, generally how can you define the matter, states of matter. So everything will come in this process. So let us describe about that. तो इन द फिजिकल नेचर की बात करें, अगर हम स्टूडेंट्स फिजिकल नेचर की बात करें, तो फिजिकल नेचर में ग्रीक फिलासफर जो लोग थे, उनका मत था, उनका मानना था कि जो मैटर होता है, उनका आइडिया ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ द 4 बेसिक सब्सटेंस. उनका मानना था कि जो मैटर होता है वो 4 प्रकार के बेसिक सब्सटेंस से बना होता है. और 4 बेसिक सब्सटेंस कौन कौन से स्टूडेंट्स? वो अर्थ है, वाटर है, एयर एंड फायर. अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. लेकिन जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु मीन्स एरिस्टोटल के जो फॉलोवर्स थे, उनका मानना था, अरिस्टोटल जो लिखा है ये ग्रीक लैटिन उसमें लिखा है, वैसे अरस्तु होते हैं. ठीक है, एरिस्टोटल के जो फॉलोवर्स थे, उनका मानना था तो कि ये बेसिक तो होते ही है. ठीक है, इसके अलावा इनके 4 स्पेसिफिक भी होते हैं. इनके 4 स्पेसिफिक भी होते हैं. जैसे यहाँ पे हमने ड्रा किया, देखो ये फायर, अर्थ, ठीक है, वाटर और एयर. देखिए 4 मैंने यहाँ पे ड्रा किया, 4. यू कैन सी देयर. तो अब इनकी स्पेसिफिक देखिए क्या है. अब स्पेसिफिक क्या क्या है, देखो स्पेसिफिक में देखो कोल्ड आएगा, ठीक है, मॉइस्ट आएगा, हॉट आएगा, ड्राई आएगा. तो इट मीन्स जितने भी 4 यूनिट हैं, सबकी अपनी एक स्पेसिफिक 4 स्पेसिफिक भी प्रॉपर्टी भी होती है, उस बेसिस पे माना गया है. ठीक है, फिर बाद में एंशिएंट ग्रीक फिलासफर जो हमारे थे, वो एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स, उनका मानना था कि जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ द 5. जैसे यहाँ पे 4 का सपोज किया गया है, तो यहाँ पे एक चीज मिस है, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्पेस आल्सो. तो अब 5 चीजों से मिलकर बना लिया गया है. जैसे हिंदी में कहा जाता है क्षितिज, जल, पावक, गगन, शरीरा, 5 तत्व से. ठीक है, 5 एलिमेंट्स. तो देयर इज द 5 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रीक इंडियन फिलासफर, एंशिएंट फिलासफर. फिर उसके बाद आए देखो डेमोक्राइटिस. इन्होंने क्या कहा कि एटम की टाइटल दिया कि हम किसी भी सब्सटेंस को छोटा करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा, किसी भी मैटर को अगर हम छोटा करते जाएं, तो एक स्टेज में ऐसा वो पहुंच जाएगा जहां पे हम उसको छोटा नहीं कर पाएंगे. दैट विल बी द इंडिविजिबल. ठीक, इंडिविजिबल पार्ट दैट विल बिकम्स, then we can locate that individual part just like atom. So who demonstrated this one? So Democritus. और आप महर्षि कणाद के नाम से फैमिलियर भी होंगे. महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर को जो बताया कि जो मैटर कंपोज्ड है, दैट इज द कॉल्ड द परमाणु. हिंदी में उसको परमाणु कहा जाता है. तो उन्होंने परमाणु की इसकी टाइटल दिया. सो बहुत सारे एंशिएंट टाइम से मैटर को लेकर के बहुत सारे रिसर्च होते रहे हैं, और बुक में आप उसको देख सकते हो स्टूडेंट्स. बुक में बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं. इस रिसर्च पे ये मैटर आपके होते रहे. अब आगे बात करें कि जो मैटर है वो बात तो अलग है. अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो मैंने उसका फिजिकल नेचर मैंने आपको बताया मैटर का. ठीक, तो फिजिकल एप्लीकेशन कैसा है. अब इसके कुछ पार्टिकुलर नेचर्स भी अगर हम बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की तो हमने बात कर ली. ठीक है, तो अगर हम फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर की बात की, अगर पार्टिकुलेट नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर मैंने बात कर ली. अब नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर.
अब देखिए स्टूडेंट, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर। मैटर का पार्टिकल नेचर की बात करें अगर हम, पार्टिकल्स, अभी देखो पार्टिकल क्या होते हैं। पार्टिकल्स मतलब मैटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। तो छोटे पार्टिकल्स जो हम लोग कहते हैं, ये सब पार्टिकल, जैसे हम किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, ठीक। जैसे एक हम ले लें स्टूडेंट्स कॉपर की, ठीक है, कॉपर की प्लेट ले लें, कॉपर की रॉड ले लें, कॉपर प्लेट ले लें, कॉपर प्लेट ले लिया, ठीक है। अब कॉपर प्लेट को और वाटर ले लीजिए, कॉपर प्लेट और वाटर। तो कॉपर प्लेट आप इसको छोटा करते जाइए, कॉपर प्लेट को छोटा करोगे तो छोटा सा कॉपर मिलेगा, ठीक। दो इंडिविजुअल पार्ट में करिए, फिर इसके बाद इनको छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, स्मॉल करते जाइए, स्मॉल करते जाइए, स्मॉलर। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि कॉपर जस्ट बी कम्स अंडर द एटम फॉर्म में। जैसे मैंने बताया था कि आप इसको स्मॉलर करते जाओगे तो जो कॉपर प्लेट एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगी जहां पे वो एटम फॉर्म में हो जाएगा। तो एटम के बाद से फिर अब उसको आप डिवाइड करना चाहोगे, इफ यू वांट टू फर्दर स्प्लिट ऑफ इट इनटू, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आएगी, फर्दर डिवीजन की बात आएगी, तो ये पार्टिकल नेचर हो जाएगा, जिसको आप एक स्पेशल चैप्टर में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक प्रॉपर चैप्टर ही बना हुआ है इसको पढ़ने के लिए। तो ये हुआ। अब वाटर जैसे है, वाटर एग्जिस्ट करता है H2O फॉर्म में, ठीक। तो अगर आप इसको स्प्लिट किए हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिए मान लो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया तो अब वाटर तो रहा नहीं, ठीक। तो आप इसको हायर में जब आप स्प्लिट करते जाओगे तो इसी तरह वो स्मॉलर पार्टिकल में स्प्लिट होता जाएगा। तो इसका मतलब कोई मैटर है अगर, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसमें पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, अरे उसमें आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ions. So all these combination, atoms, ions and molecules, all these will combine in a matter. तो ये मैटर में कंबाइन करेंगे। तो मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, इच मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल नेचर्स में इच मैटर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करेगा स्टूडेंट्स, देखिए पार्टिकल्स, very small particles, atoms, molecules or ions with different size and mass. Very small particle, ions, atoms, molecules of different size. ये किस में रहेगा स्टूडेंट्स, इन मैटर। किसी मैटर में ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope all of you are learning very well and clearly. Next one students, ये हम कैसे दिखाएं, to show the matter consist of teeny particles. अब हम ये कैसे डिमोन्स्ट्रेट करें स्टूडेंट्स कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। To demonstrate matter consists of tiny particles. मैटर कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स, ठीक। मैटर कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स अगर हम छोटे दिखाना चाहें कि जैसे ये हम ग्लास में वाटर लिए, ठीक है, दिस इज द वाटर एंड शुगर। मान लो हम एक चम्मच यहाँ पे शुगर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये शुगर, ठीक, इस वाटर में हम डाल देते हैं। ओके, सो आफ्टर सम टाइम्स यू विल इफ यू स्टेयर दिस वन, after some times
you will see there that the whole sugar disappear in the water. Okay, the whole sugar disappear in the water and there is no any residue left in it. So it means the intermingling of the sugar particles. अगर शुगर क्रिस्टल फॉर्म में है छोटे छोटे, तो जैसे ही शुगर एक क्रिस्टल फॉर्म में टूटता है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स में वो टूट जाता है, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में. यानी वन शुगर क्रिस्टल कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ द सब पार्टिकल्स ऑफ शुगर. सो इट विल डिसअपियर एंड फिक्स बिटवीन द स्पेस विच इज फाउंड इनटू द वाटर. वाटर के बीच जो स्पेस होता है उसमें जाकर के वो शुगर फिट हो जाता है. इसीलिए हम कितना भी इसमें शुगर डिजॉल्व अगर करेंगे तो सारे डिजॉल्व होते जाएंगे, लेकिन इसका लेवल जो है वाटर का वो राइज नहीं करेगा. द लेवल विल नॉट राइज. सो इट इंडिकेट्स दैट डिमोन्स्ट्रेट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स. अगर हम छोटा सा ट्रेसेस ले लें स्टूडेंट्स, छोटा स्मॉल पार्ट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पिंक कलर का पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ वाटर है, ठीक है, ये दिस इज द वाटर. अगर हम इसमें थोड़ा सा इसमें हम अगर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देते हैं, तो एक छोटा सा ट्रेसेस अगर हम इसमें क्रिस्टल डाल दें पोटेशियम परमैंगनेट के, तो हम देखेंगे कि जो KMnO4 के क्रिस्टल हम यहाँ पे डाल दिए वाटर में, तो ये पूरा का पूरा इसको कलर कर देगा. छोटा सा एक स्मॉल थोड़ा सा पार्ट ही पूरे वाटर को कलर करने की क्षमता रखता है. इसका मतलब है कि इस छोटे से क्रिस्टल में, छोटे से पार्ट में बहुत सारे टीनी पार्ट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी ऑर्डर में बात करें 10⁻21 पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो ये आप ऑर्डर देख सकते हो स्टूडेंट्स. हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ द मैटर. अब आप शुगर को जैसे हम ये दिखा सकते हैं कि द मैटर हैज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द मैटर. मैटर के बीच क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेस होता है. पार्टिकल्स जो मैटर में जो पार्टिकल पाए जाते हैं, देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम. स्पेस को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स? स्पेस को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे शुगर लेकर के डिजॉल्व करके भी डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि वहां पे स्पेस है. जहां पे जो शुगर की क्रिस्टल जाकर के फंस गए हैं, वहां जाके फिक्स हो गए हैं और लेवल राइज नहीं किया है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़े, थोड़ा सा बात करें. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता ही दिया. अब नेक्स्ट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, बात करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो जितने भी पार्टिकल मैटर होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. ओके, तो जैसे अगर हम कोई सॉलिड की बात करें, इफ यू टेक अबाउट द सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड. अभी आगे बात करेंगे स्टेट्स ऑफ द मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. तो वैसे आप ये पता ही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आर क्लोजली पैक्ड. देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम है, तो इससे जो फोर्स लगेगा बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दैट इज द फोर्स इज द कोहेसिव फोर्स. दैट इज द कोहेसिव फोर्स. द नेम ऑफ द फोर्स इज कोहेसिव फोर्स. तो कौन सा फोर्स लगे स्टूडेंट्स? कोहेसिव फोर्स. The force that is acting between them, cohesive force. Cohesive force will act.
और कोहेसिव फोर्स जब जो सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है, दैट फोर्स इज द कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. और दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन होल्डिंग द मैटर पार्टिकल्स इनसाइड द मैटर. अगर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज हैं प्रॉपरली, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन कीपिंग द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, अब ये कोहेसिव फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर and the particles natures which are present inside the matter, and the force acting between them will decide that whether it will be cohesive or adhesive force. So this force is very responsible. तो ये जो फोर्स लगता है, that force is called the cohesive force, and this is also called the intermolecular force of attraction. तो नेचर इन दोनों फोर्स का क्या होता है हमेशा, these force are always will be regarded as the intermolecular force of attraction. तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है. गैस में कम क्यों होता है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स, थ्योरी ऑफ द गैस and the particles lying far apart, that's why there is a less space between them, and due to that there will be less force of attraction. नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स. कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स. ओके. अब अलग अलग स्पेस आप देखोगे, अलग अलग मैटर में कभी कभी क्या होता है कि जो अलग अलग एटम होते हैं तो उसमें एडहेसिव फोर्स क्रिएट होता है, नॉट अ कोहेसिव फोर्स. ओके. अब एक बात और करें, इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में जो पढ़ ही रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो गैस के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, दैट आर ऑलवेज इन मोशन. वो हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं. मूवमेंट करते रहते हैं कि जैसे हम कहीं रूम में किनारे में अगर एक स्टिक्स, इंसेन स्टिक्स, अगरबत्ती अगर जला दें स्मेलिंग क्रिएट करने वाली, तो वो पूरे रूम को कवर कर लेती है, स्मेल हर जगह पहुंच जाता है. सो दिस इंडिकेट्स द डाइफ्यूजन प्रॉपर्टी, एंड दिस डाइफ्यूजन प्रॉपर्टी इज सीन highly in case of the gas, but some other just like liquid also show the property of diffusion, but lesser in quantity as compared to the air. but सबसे कम जो होगा वो सॉलिड में डिफ्यूजन होगा, सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है. तो ये आपकी सारी चीजें रही स्टूडेंट्स, हमने आज आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताया. एंड देयर आर सम एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड इन योर बुक. You can do these activities at home if it is possible. Then you can demonstrate to understand the everything clearly and properly. Thank you students for watching today's video, and this is the only type of the introduction of the chapter. And in next video we will be describing about the states of the matter, solid, liquid and gas, and each characteristics of the matter, and then it will be discussed in detail. And this is the only for the introduction and the type of introduction of the chapter which you have just started. It means the state of the matter in our surrounding. Thank you students for watching today's video. My dear students, take a screenshot of entire blackboard so that you can have the proper written format of homework. So dear students, there are 4 questions mentioned over here blackboard. You have to copy the same one and write the proper answer of each questions and submit in time. Thank you student.